तो briefly introduce yourself, Palak. Yes, sir. My name is Palak Jain. I am a determined and enthusiastic girl. I am from Sikri, Bharatpur in Rajasthan, currently living in Alwar. I live in a family of 7 members, which include my grandparents, my parents, me, and my 2 younger siblings. I did my graduation in Bachelor's of Science from Rajrishi Bhartri Matsya University in the year 2022, and I take interest in cooking and listening music. Okay. So you belong to Bharatpur, correct? Your hometown. Yes, sir. अच्छा, who is a member of parliament from your Bharatpur? Shri Jawahar Singh Bedam ji. Okay. And have you heard the name of Mahant Balaknath? Yes, sir. तो वो कहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? सर एक्चुअली जवाहर सिंह बेगम जी नगर के हैं, नगर के एमएलए हैं। अच्छा अच्छा, भरतपुर में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट साइट? यस सर, सर केवला देव घना नेशनल पार्क। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और करेंटली यू आर लिविंग इन अलवर? अलवर, यस। ओके, तो अलवर क्या एनसीआर में आता है क्या? नहीं सर, अलवर एनसीआर में सर आई डोंट हैव एनी आइडिया सर। ओके, और भरतपुर, व्हाट अबाउट भरतपुर? सर भरतपुर इज आल्सो नोन एज लोहागढ़ because of the fort forts, and it is also popular for the UNESCO World Heritage Site, which is Kevla Dev Ghana National Park. और ये रामसार साइट भी है क्या? Sorry sir, I don't think Ramsar sites are wetland site होती हैं। ओके, ने केवला देव इज आल्सो पार्ट ऑफ रामसार साइट, ठीक है। फर्स्ट इट वाज फर्स्ट रामसार साइट व्हिच वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय रामसार कन्वेंशन 1981, केवला देव, एंड सेकंड वन इज चिल्का लेक, ठीक है, दैट इज इन उड़ीसा, ठीक है। हाँ, अच्छा, आपने मेंशन किया कि यू बिलोंग टू जैन कम्युनिटी, तो टेल मी अबाउट महावीरा, जैन महावीरा। Sir, Jain Mahavira is a 24 Tirthankar, and actually the Jains are living in the era of Shri Mahavir ji, and there's also a place Shri Mahavir ji Dham, and earlier it was called Chandanpur, and it is in Karoli district of Rajasthan. Can you tell me about something like birth and where he born, and then where he died, which place that movement started, that religion started? Yes, sir. Sir, he is born in Pawapur, Bihar. Pawapur, Bihar. As I am recalling, he is born in Pawapur, and his father's name is Siddharth and mother's name is Trishla. And according to our Jain books, he is not married, but according to our books of social science, he was married to Yashoda. But according to our cultural books, he is not married. He is Bal Brahmachari, and he was died in Kundalpur, sir. Actually, Kundalpur and Pawapur, I am confused. I think he was born in Kundalpur and died in Pawapur. करेक्ट। हाँ, आप कंफ्यूज कर रही हैं, दोनों आपने उल्टा बताया, ठीक है, तो कोई नहीं। और अच्छा, देयर इज अ वेरी फेमस टेम्पल आर्किटेक्चर इन जैन टेम्पल्स इन राजस्थान, कैन यू टेल मी इट्स नेम? इट्स अ वेरी फेमस। सर राजस्थान में तिजारा, हमारे मतलब अलवर में तिजारा में टेम्पल है चंद्र प्रभु भगवान जी का, और जो मैंने आपको बताया श्री महावीर जी टेम्पल इन करौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। व्हाट अबाउट दिलवारा टेम्पल? सॉरी सर, दिलवारा टेम्पल, हैव यू हर्ड दिलवारा?
माउंट आबू के बारे में सुना है आपने? यस सर। हाँ, यस सर, दिलवारा टेम्पल सुना है। क्या है वो दिलवारा टेम्पल? बट सर, मैं आज तक वहां नहीं गई हूँ, तो मुझे उसका आइडिया नहीं। ओके, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा। अच्छा, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन योर राजस्थान? सर, देयर आर 50 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके। अच्छा, योर हॉबी इज कुकिंग, तो व्हाट यस डू यू सर। लाइक टू प्रिपेयर और कुक इन फ्री टाइम? सर, बेसिकली आई लाइक टू ट्राई न्यू रेसिपी, make it in my own way. Like I make lachha paranthas, any type of pastas. I make different types of pastas, pulao, in my own way, basically. इन ओन वे, व्हाट डज इट मीन? मतलब हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम So कॉमन actually, पास्ता yes, sir. कुकिंग Actually, एंड? I, yes, sir. Actually, I try to make it in my own way, like by adding some extra ingredients or by removing some ingredients विच according to टाइप my taste and preference. which type of ingredients? Is it nutritious or just for a taste? Like you added only spices or these things? No, sir. Nutrition with taste is my preference always. Okay. Okay. Acha, can you tell me the two or three best chef of this country? Yes, sir. There's one Michelin star chef, Vikas Khanna ji, Mm-hmm. and the famous Sanjeev Kapoor Mm-hmm. ji, Acha. And second hobby is your and Ranveer listening. Brar is also. Correct, Yes, sir. correct. Very good, very good. Second, your hobby is cooking. Sorry, listening music. So which type of music do you like to Yes, listen? sir. Actually, I like to uh, play frivolous and something romantic songs. Who is your favorite singer? Sir, KK Krishna Kumar Kunnat ji. Okay, Krishna Kumar Kunnat. Okay. Which is your favorite song? Do you like to listen always? Yes, he has his debut album. Pal the name of the album was Pal, Mm-hmm. and Okay. there are many songs of him which I listen. Okay. Okay. And any other classical singer? Can you tell me the name? Yes, sir. Mhm. Classical singer, sir. S.P. Balasubramaniam ji, and I also like to listen to his songs. Udit Narayan Mhm. ji. Mhm. There. Okay. So what do you understand by banking? Suppose as a layman term, suppose I'm a farmer and you are a manager, okay? And suppose आपको बताना है मुझे कि क्या बैंकिंग क्या होता है, तो how will you define the banking? Sir, I will say banking is a lawful organization where l- uh, you can sir, can I speak in Hindi? हाँ, श्योर श्योर। बैंक एक लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप अपने पैसे जमा करा सकते हैं और आप उनसे लोन प्रोवाइड कर सकते, लोन आपको बैंक देगा, आप उनसे लोन ले सकते हैं। सर, मैं एक फार्मर को ऐसे सरल भाषा में समझाऊंगी बैंक के बारे में। ओके, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे गवर्नमेंट ने लाया था टू प्रमोट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लाइक फार्मर्स एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लेबरर्स, एटसेट्रा। कोई इनिशिएटिव है कुछ जो गवर्नमेंट ने लिया हो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडिया में? Yes, sir. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched for the financial inclusion, in which social security schemes like Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana was launched to तो promote financial inclusion. जनधन योजना का क्या ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का? इससे क्या बेनिफिट होगा? सर, जनधन योजना 2014 में लॉन्च की गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव जो इस जनधन योजना का था वो था कि जितने भी हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं या जितने भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उसके लिए हम जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाएं
और उनको हम लोन भी प्रोवाइड कर सकें, और उनको जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ प्रीमियम, ये सब प्रोवाइड करा सकें अभी तक कितना विद बेसिक एनुअल प्रीमियम। यस सर। तो अभी तक कितना अकाउंट खुल चुका है, कुछ डेटा है कुछ गवर्नमेंट का, आपको आपके नॉलेज में कोई? Sir, data I'm not recalling, but I have read about it. Data I'm not recalling at this moment. ओके। अच्छा, एनबीएफसी क्या Yes. होता है? Sir, NBFCs are non-banking financial companies. ऐसी कंपनीज सर जो मतलब ये भी सर ये क्या है ना, ये आरबीआई के परमिशन के बिना भी अपने ब्रांचेस ऑल ओवर खोल सकती हैं, लेकिन जो इसमें जो कस्टमर होते हैं एनबीएफसी के, उनको डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम में नहीं मिलता है। सर अभी मैं यही रिकॉल कर पा रही हूँ। आई हैव रेड इट बट। कोशिश करिए। क्या यस यस। और क्या इसमें हो सकता है, कौन रेगुलेट करता है इसको, एनबीएफसी को? कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसका वर्क है, कुछ आप गेस कर सकती हैं इस पे? सर आई हैव रेड अबाउट इट बट आई एम नॉट रिकॉलिंग इट राइट नाउ। ओके, एसएलआर क्या होता है? सर SLR stands for statutory liquidity ratio. The share of NDTL the bank must maintain as in a safe and liquid assets like government securities and gold, cash, etc. ओके। अच्छा, आप अगर सेविंग बैंक अकाउंट सपोज कहीं खुलवाती हैं, चाहे आपका होगा भी, तो उसमें कितने नॉमिनीज Yes, sir. होते हैं? तो उसमें कितने नॉमिनीज आप रख सकती हैं? Sorry, sir, I don't have idea. ओके। और सपोज आपको अगर मैं एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछूं कि आपको सपोज 1 करोड़ रुपए का आपको प्राइज मिल जाता है, कहीं लॉटरी लग जाती है और आप ढेर सारी ज्वेलरी खरीदती हैं, तो आप कहाँ रखेंगे, घर में या क्या? नहीं सर, बैंक में रखूंगी। कहाँ पे, बैंक में कहाँ? सर बैंक में लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें बैंक, वहां हम्म। मैं रख सकती हूँ। लॉकर फैसिलिटी में भी क्या नॉमिनीज का नाम डालना होता है या फिर सिर्फ हाँ जी सर, नॉमिनी होते हैं लॉकर फैसिलिटी में। कितने नॉमिनीज हो सकते हैं वहां पे? सर कैन आई टेक अ गेस? इफ आई एम हाँ। नॉट रॉन्ग, हम्म। there are 3 nominees, if I'm not wrong. ओके, ठीक है। सेविंग में एक नॉमिनीज होते हैं, और सेविंग अकाउंट में, और इसमें 3 नॉमिनीज होते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर डिसइन्वेस्टमेंट वो होता है जब गवर्नमेंट अपना जो खुद ओन करती है उसको उसके मार्केट शेयर में मतलब उसके मार्केट में शेयर्स उतार दे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। कोई एग्जांपल दे सकती हैं डिसइन्वेस्टमेंट का? सर जैसे अभी LIC में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात आ रही है। हम्म। यस सर, डिसइन्वेस्टमेंट ऐसे। तो अभी बजट आया था, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट ने कितना टारगेट रखा है? सर 50,000 करोड़। हाँ, सही है। नेशनलाइजेशन क्या होता है? नेशनलाइजेशन से सर क्या समझते हैं? नेशनलाइजेशन, yes sir, nationalization is the acquisition of a private entity by the government. हम्म। कोई एग्जांपल, बैंकिंग का नेशनलाइजेशन कब हुआ? सर बैंकिंग का नेशनलाइजेशन 2 फेजेस में हुआ था, 1969 में और 1980 में। कितने बैंक का हुआ था 1969 में? सर 11 बैंक्स। ओके, और 1980 में? सर मे बी 6 या 4, आई एम नॉट रिकॉलिंग, हम्म। इधर 6 और 4, आई थिंक 4। ओके। अच्छा, आप कौन को 2 कमिटी का नाम बता सकती हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड हो, बैंकिंग रिफॉर्म से वो रिलेटेड हो? यस सर। हम्म। सर नचिकेत मोर कमिटी ने तो पेमेंट बैंक, नचिकेत मोर कमिटी के रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक बने थे। हम्म। एंड सर देयर इज वन मोर जिनके
कहने पर आरआरबीज, जिनके कमेटी के अंदर आरआरबीज बने थे, डॉक्टर के, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द सर नेम ऑफ हिम, बट डॉक्टर के इज द स्टार्टिंग, डॉक्टर के। ओके, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, तो हु इज योर फेवरेट बैंकर? कोई है फेवरेट बैंकर जिसको आप बहुत लाइक करती हो, जिसको काफी अप्रिशिएट करती हो, कोई आपका रोल मॉडल हो, ऐसा कोई है? सब बैंकिंग में मैंने जो अरुंधति रॉय हैं, जो एसबीआई की जो सीएमडी रह चुकी हैं, वो भी एक पीओ से उन्होंने शुरुआत करी थी। हम्म। अ, उनको मैं, मतलब उनके बारे में मैंने देखा। और हम्म। दिनेश कुमार खारा जी, वो भी एसबीआई के। हम्म। अतुल कुमार गोयल जी, जो अभी करेंटली सीएमडी हैं पीएनबी के। हम्म। सर, ये सब पीओ से बन के सीएमडी तक पहुंचे हैं। सो हम्म। इन बैंकिंग इंडस्ट्री दे आर माई रोल मॉडल। ओके, तो आप भी अपने आप को आफ्टर 25 ईयर्स और 30 ईयर्स कहाँ देखती हैं बैंक में? सर डेफिनेटली उसी पोजीशन में देखूंगी अपने आप को, सीएमडी के पोजीशन में, इन द लाइन ऑफ द सीएमडीज। हम्म। यस। नहीं नहीं, बढ़िया है। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है? सर मिस्टर शक्तिकांत दास जी। वो कौन सा नंबर के गवर्नर है? सर 25th। 25, बढ़िया। ईसीजीसी क्या होता है, आपने सुना है कभी ईसीजीसी? यस सर, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या रोग काम इट होता है वाज उसका? एस्टेब्लिश्ड इन 1982। हम्म। सर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो मतलब जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो भी वर्क होता है, हम्म। वो ये संभालते हैं। अभी के लिए मुझे इतना ही पता है। अच्छा, आपने अभी न्यूज में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड काफी न्यूज था। क्या होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड? सर आई हैव नॉट रेड अबाउट इट, बट यस रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स न्यूज में है, बट अभी मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा सर। अच्छा, तो वो क्या बैंक से कुछ रिलेशन है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, कोई आइडिया? कभी आपने पढ़ा हो? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, अभी आपने न्यूज में पढ़े होंगे फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग है, तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स? यस सर। सर फार्मर्स ने अभी दिल्ली चलो अभियान शुरू किया है। सर उनको ये डिमांड है कि जो एमएसपी जो होते हैं ना, वो साल में जो गवर्नमेंट है वो 2 बार अ, देते हैं, अपडेट करते हैं प्राइसेस एमएसपी के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के। तो वो ये चाहते हैं कि ये जो सरकार ने बोला है ये हमें लिखित में चाहिए। लॉ बनाने की बात कर रहे हैं मतलब? अभी के लिए हाँ जी, रिफॉर्म्स लाने के लिए वो कर रहे हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर। अच्छा, अभी एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को भारत रत्न दिया गया है, आप नाम बता यस सकते हैं सर। उनका? सर डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी। उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। कहाँ पे हुआ था ग्रीन यस रेवोल्यूशन, सर, फादर कौन ऑफ। कौन सा एरिया में हुआ था? सर ग्रीन रेवोल्यूशन पैडी फील्ड्स में हुआ था। हम्म। उन्होंने मतलब बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे हमारी जो क्रॉप्स है उनमें रिवॉल्यूशन आ सके साइंटिफिकली। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पैडी क्रॉप्स के लिए उन्होंने किया था रिवॉल्यूशन। और रीजन कौन सा था, कौन सा स्टेट में ज्यादा फोकस किया गया था इसके अंदर? सॉरी सर, आई डोंट नो। अच्छा, अभी तक इस साल भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है, सबका नाम बता सकते हैं आप? सर इन दिस ईयर, यस सर। हम्म। सर अभी तक 5 भारत रत्न दिए गए हैं। हम्म। 2 पहले दिए गए थे, 3 अब दिए गए हैं रिसेंटली। क्या क्या नाम है, किनको किनको मिला है इस पर? सर फर्स्ट कर्पूरी यादव जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हम्म। former chief minister of Bihar, हम्म। and the second one is the LK Advani ji, हम्म। and third one is the Shri PV Narasimha Rao, जिन्होंने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे। And fourth, Dr. M.S. Swaminathan, father of Green Revolution. And fifth is Shri Chaudhary Charan Singh ji, the former two-time chief minister of Uttar Pradesh. ओके, अच्छा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है?
सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है कि जिसमें बैंक्स को प्रायोरिटी दी जाती है कि आपको लोन्स मतलब इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में भी देने हैं, जिससे बाकी मतलब वो जो बैंक्स हैं बाकी के उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ना देते जो पहले से ही एफ्लुएंट है, उनके लिए जैसे कुछ प्रायोरिटी वाइज एग्जांपल, रखा जाता है। कुछ सर एग्जांपल। जैसे मैक्सिमम, सर देयर आर 8 PSL: एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो कुछ परसेंटेज भी डिसाइड है क्या, या फिर कितना भी दे सकते हैं? सर परसेंटेज है। हम्म। कितना परसेंट? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए 40%, RRBs के लिए 75% एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 75%। अच्छा, आपने अभी यूज किया टर्म शेड्यूल कमर्शियल बैंक, क्या होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं सर जो RBI के एक्ट में शेड्यूल्ड हो। जैसे शेड्यूल्ड होता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे शेड्यूल हैं, तो RBI के एक्ट में भी ये बैंक्स शेड्यूल्ड के अंदर आते हैं, उनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं। कौन सा एक्ट है आरबीआई का? तो RBI एक्ट 1934। ओके, और कौन सा नंबर का सेक्शन है ये? सॉरी सर। अच्छा, कोई फॉरेन बैंक भी आ सकता है क्या शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर? सर एक फॉरेन बैंक, आई डोंट नो सर। ओके। अच्छा, पेमेंट बैंक के लिए भी क्राइटेरिया होता है क्या, वो पीएसएल एप्लीकेबल है उस पे पेमेंट बैंक के लिए? नहीं सर, PSL पेमेंट बैंक पे एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? बिकॉज PS सर पेमेंट बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करते हैं, तो वो लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो फिर PSL उन पे एप्लीकेबल नहीं। अच्छा, आपको बायोलॉजी से आपने बताया ग्रेजुएशन कर रखी है, हाँ? तो जब आप जी सर बैंक बिल्कुल। में ज्वाइन करेंगी तो बायोलॉजी का क्या यूज हो सकता है आपके पढ़ाई का, जो आपने जिस पे आपने पढ़ाई की है, तो उसका क्या यूज हो सकता है बैंक में? सर आई थिंक माई ग्रेजुएशन विल हेल्प मी इन द बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज सर जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए है। इस क्वालिफिकेशन के दौरान मैंने बहुत सारी स्किल सीखी हैं, जैसे दूसरे लोगों से कैसे बात करना है, स्ट्रेस में कैसे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल मेरी बहुत अच्छी हुई है। एंड सर एज अ साइंस स्टूडेंट वी नो हाउ टू वर्क with less resources, with maximum output and 100% result, because we know how to work. That's why sir. नहीं तो आपका सब्जेक्ट का आपको लगता है कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो सकता है बैंक में? सर एग्रीकल्चर लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक में, so I think I can understand the need of the farmer because I have read about that ओके। कि उनको क्या क्या दिक्कत आती है। हम्म। तो अभी जैसे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कोई स्पेसिफिक स्कीम है फार्मर्स के लिए जो जिसके अंदर लोन प्रोवाइड किया जाता है? सर अभी PM किसान सम्मान निधि योजना ये हम्म। किसानों के लिए लाया गया है, और सर फसल बीमा योजना भी किसानों के लिए लाई गई है। कृषि सिंचाई योजना भी किसानों के लिए लॉन्च की गई है सर। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना है आपने, केसीसी? हाँ जी सर सुना है। क्या है ये? सर ये किसानों को लोन प्रोवाइड करने के लिए दिए गए थे। अच्छा। अच्छा, कासा क्या होता है? सर कासा इज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। क्या इसका इम्पोर्टेंस है बैंकिंग में? सर बैंकिंग में इसका इम्पोर्टेंस ऐसे है कि कासा हमारा लो होना चाहिए, क्योंकि सर करंट अकाउंट में हम इंटरेस्ट नहीं देते हैं ना, तो हमारी और राफा, कासा हमारा, कासा हमारा सॉरी ज्यादा होना चाहिए। सॉरी सर, आई एम एक्चुअली ब्लफिंग। सर कासा हम्म। हमारा ज्यादा होना चाहिए, राफा कम होना चाहिए।
I'm confusing sir right now. I know, but I'm getting confused. ओके, अच्छा, अभी मर्जर ऑफ बैंकिंग हो रहा है, काफी बैंकों का मर्जर किया गया है, तो आपको क्या लगता है, ये सही है या फिर इससे बेनिफिट्स होगा या फिर लॉस होगा बैंकिंग इंडस्ट्री को, क्या है ये? सर बैंक्स का मर्जर इसलिए किया जाता है कि अगर एक बैंक लॉस में है तो दूसरा बैंक उसे उसको एक सहारा दे दे, जस्ट लाइक सर, आई डोंट नो अबाउट दिस एट दिस टाइम। ओके, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग के बारे में क्या सोचती हैं आप? जैसा अक्सर आप डिबेट देखती होगी ना कि बैंक को प्राइवेटाइज किया जाए, तो क्या आप इसके बारे में, इसका विचार है आपका? सर आई डोंट थिंक कि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है इन माय ओपिनियन, बिकॉज सर नाउअडेज एनपीए इज इन गुड ट्रेंड। आई डोंट थिंक सो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी। नहीं, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा तो कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा। आप क्या सोचती हैं कि वो गलत कर रहे हैं? नहीं सर, आई डोंट थिंक कि वो गलत कर रहे हैं, बट इन माय ओपिनियन आई आल्सो डोंट थिंक कि प्राइवेटाइजेशन करना सही भी है। हम्म। यस सर। ओके, ठीक है। और आपने बैंकिंग में करियर बनाने के बारे में कब सोचा? मतलब आप तो सर प्रोफेसर ड्यूरिंग ही माय बन सकते। ग्रेजुएशन। ड्यूरिंग में ग्रेजुएशन क्या ऐसा क्या हुआ कि आप बैंक में करियर बनाने के बाद सोची? प्रोफेसर भी बन सकती थी आप, और चाहे आप सिविल सर्वेंट भी बन सकती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आप सिविल सर्वेंट के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, यूपीएससी के लिए ट्राई करना चाहिए? क्या आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? सर एक्चुअली during my graduation, when I was doing my graduation, I know कि I would go for the professor line, but sir I don't have interest in teaching, and for me, I think I am most suitable for banking, sir, because I know how to handle pressure and stress, basically because of my field. And sir, I have interest in banking. That's why I chose banking. ओके, नहीं तो कैसे आप, आपने बोला स्ट्रेस मैनेज कर सकती हैं, तो आप ये बताइए कि बैंक में हो सकता है आपको 8 बजे भी लौटना हो, 9 बजे भी लौटना पड़ता है, तो आप कैसे आप मैनेज करेंगी? क्या ऐसा यूनिक है आपके पास टेक्निक्स कि आप उसको अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगी, वर्क के साथ फैमिली बैलेंस कैसे करेंगी, क्या है? सर आई नो कि बैंक में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स है उनको थोड़ा लेट हो जाता है, बट आई विल मैनेज, बिकॉज इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, सो आई नो what are the roles and responsibilities of a PO, and I think I am the best fit for it. I will manage, sir. कैसे आप डिफरेंट है, आप ही को क्यों लें? बाकी लोग भी तो मतलब अच्छे कैंडिडेट हैं, तो आप में ऐसा क्या फीचर्स है, क्या आप में गुण है कि जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है? सर हर कोई अपने आप में बहुत अच्छा होता है, बट अगर मैं मेरी बात कहूँ तो सर मैं मेरे अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। मुझे लोगों के साथ बात करना आता है, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, आई नो, हम्म। एंड आई एम ऑल्सो ईगर टू एक्वायर नॉलेज, एंड हम्म। बैंकिंग इज अ वेरी डायनेमिक इंडस्ट्री। आई एम द वन हु लव टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड बैंकिंग में तो कुछ नया आता ही रहता है, सो आई थिंक आई एम द बेस्ट फिट फॉर इट। तो नियो बैंकिंग क्या है? Neo banking, sir, it is the online banking is the neo banking, sir. तो अभी क्या आपको बैंक में क्या कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ कुछ 2-3 इनिशिएटिव आप बता सकती हैं कि क्या रिसेंट इनिशिएटिव लिया गया है? बैंक में ऑनलाइन से रिलेटेड, हाँ हाँ। सर अभी जैसे मेटावर्स लॉन्च हो रहे हैं, पीएनबी ने अपना मेटावर्स लॉन्च किया है हम्म। ऑनलाइन फील्ड में। हम्म। सभी बैंक्स अपना जो ऐप है वो लॉन्च कर रहे हैं, जिससे ऐप सब जो लोग हैं वो अपने घर बैठे ही अपने जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो अपने फोन से ले पाएं, जिससे डिजिटलाइजेशन प्रमोट होगा। हम्म। एंड वो अपने सर्विसेज को अपडेट कर रहे हैं, जिससे घर हम्म। बैठे हम अपने जितने भी हमें बिल का भुगतान करना है या फिर हम्म। कोई रिचार्ज करना है,
कुछ इनफैक्ट कोई पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वी कैन डू एट होम. बैंकिंग इज डायनेमिक. सो ओके, तो आपका इंटरव्यू यहाँ समाप्त होता है पलक, और आपको मैं जी कुछ सर. फीडबैक दूंगा, ठीक है। तो आपका नॉलेज अच्छा है, ठीक है, बैंकिंग नॉलेज आपका ओवरऑल अच्छा है, पर्सनालिटी में भी काफी कॉन्फिडेंट हैं आप, तो प्रेजेंटेशन स्किल काफी अच्छा है। आप मिक्स लैंग्वेज का यूज करें, बाइलिंगुअल का यूज करें, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलाकर, सिर्फ इंग्लिश में आप मुझे लगता है आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही हैं, तो आप दोनों मिक्स करके यस चलें, सर. ठीक है। और क्योंकि बहुत ओके अच्छा है, सर. आपने हिंदी इंग्लिश को यूज कर कर बाइलिंगुअल बहुत ही अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल है। कुछ फैक्ट जैसे मैंने पूछा आपको एनसीआर के बारे में, तो एनसीआर में दो डिस्ट्रिक्ट आता है आपके राजस्थान से, अलवर और भरतपुर, ये दोनों आपके बायोडाटा में मेंशन है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। जी. बाकी आपने केवला देव के बारे में बहुत ही अच्छा बताया। नॉमिनी के बारे में आप कंफ्यूज हो रही थी, जब मैंने नॉमिनी सेविंग अकाउंट और लॉकर के नॉमिनी के बारे में पूछा, जी. तो जब आप कंफ्यूज हो ना, जी सर. तो सिंपल कोशिश करना है कि पहले की परमिशन ले लें सर से, ठीक है, कि क्या सर मैं अब नॉट कॉन्फिडेंट, क्या मैं गेस कर सकती हूँ, इस टाइप से परमिशन ले लें। और घबराना नहीं है, आप थोड़ा सा घबरा जा रहे थे, दो तीन बार मैंने देखा जब आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा सा घबरा रहे थे, तो वो घबराना नहीं है। और थोड़ा सा करंट में ओके क्या सर. चल रहा है, जैसे अभी बहुत ही बड़ा जजमेंट आया इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो अभी क्या है कि न्यूज़पेपर जी. आप पढ़ें, लास्ट 1 वीक का न्यूज़पेपर आपको पढ़ा होना चाहिए। आपका इंटरव्यू कब है? सर 23rd को. 23rd को है, तो अभी जो है काफी टाइम है, तो आज से आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगी, जिस दिन न्यूज़पेपर जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब हिंदी मतलब जी. लोकल न्यूज़पेपर जो भी हो, और हाँ जी. साथ में एक हाँ इंग्लिश जी. न्यूज़पेपर, कुछ ना कुछ उसका हेडलाइंस तो एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या चल रहा है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी अभी आया है रिसेंटली, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी जो है वो जी. अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है थोड़ा उसके बारे में जाने, क्योंकि वो एसबीआई इशू करता है, तो बैंक के द्वारा वो इशू किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैंक का रिलेशन है इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि करंट से थोड़ा सा उस पर वर्क करें। और ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने जी पूछा, सर. क्योंकि वो अभी काफी न्यूज में था, तो आपको थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा रीजन में हुआ, ये वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये रीजन में हुआ था, ठीक है। और ओके सर. हाँ, और ओवरऑल जो है जैसे मैंने, हाँ, एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में, तो आप देखो, गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक होगा उसका, तो आपको उसको गलत नहीं बताना है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस में जो क्रिटिकल क्वेश्चंस है और क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला क्वेश्चंस है उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी रखें और निगेटिव पॉइंट्स भी रखें, ठीक है। और 2 पॉइंट्स अगर, 4 पॉइंट्स अगर पॉजिटिव रख रहे हैं, 3 पॉइंट निगेटिव भी रखें कि ये चैलेंजेस हो सकते हैं और ये एडवांटेजेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनका पीछे लॉजिक होगा, जी. ठीक है। तो थोड़ा सा इस टाइप का बैलेंस जी करना सर. है। और आपने बहुत सारे सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया, हॉबीज के बारे में आपने बहुत ही अच्छा बताया है, और और बाकी सवालों का भी, म्यूजिक के बारे में भी आपने बहुत ही अच्छा बताया, और सेफ के बारे में मैंने पूछा वो भी आपने बहुत ही अच्छा बताया है। जैन के बारे में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रही थी, जैन टेम्पल के बारे में थोड़ा सा पता कर लेगा, क्योंकि आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं, दिलवारा जो वहाँ है माउंट आबू के बारे जी. में, वो श्वेतांबरा जैन टेम्पल है, ठीक है। उनका जन्म जी और सर. कहाँ मृत्यु, वो दोनों में आप कंफ्यूज कर रही थी, ठीक है। अगर नहीं याद है तो सिंपल अब बोल देगी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, सिंपल सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो इमीडिएटली आ जाएंगे। ओवरऑल आप बहुत ही प्राइम कैंडिडेट हैं सिलेक्शन के लिए, बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है आपको इंटरव्यू में। बस आप जो मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कीजिए, थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करिए, ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट। ओवरऑल आपका जी पर्सनालिटी सर. बहुत ही अच्छा है इंटरव्यू के लिए, और बैंक के लिए आप परफेक्ट हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से पलक, थैंक यू और सर. ठीक है, जी. और अच्छे से आप इंटरव्यू दीजिए, हाँ जी. बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।